Hello everyone, a very good evening. Hello Molima, how are you? Good evening बच्चे. Hello Adarsh. Hi Shankar. How is everyone doing? Please acknowledge me in the chat box if I'm audible enough and you guys are able to see me. Hi Apurva. Hello Sanjay. कैसे हैं आप सभी? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए अगर मैं आपको दिखाई दे रही हूँ और मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो. हाय महेश. हेलो अर्जिता. So yes, all of you settle down first of all so that we can begin with our session. I hope that all of you are doing great. Okay, fine. Okay, that's great. That's great. Hi, Vanya, Neha, Ashna, Divyansh. Okay, guys. So I welcome you all to the GoPrep. I am Abha Pandey, your biology faculty right here at GoPrep. I hope that all of you are doing great. Hello, Mahesh, Srijan, Ashna. Please settle down. So we have Kartikesh sir along with us, who is going to assist you all with your doubts. तो आपके जो भी doubts होंगे बच्चा, कार्तिकेय सर हैं यहाँ पे आपकी help करेंगे in that particular doubts. Sound is low. Is it fine now? Okay, yeah, please, everyone, settle down. I hope that all of you are doing great. Very good evening, very good evening. And okay, chaliye. Are you all settled down? Can we begin with our session? Is it low? Is it fine now? अभी ठीक है आवाज या अभी भी कम है? Okay, wait a minute. Just a minute. Is it okay now? Okay, fine. That's great. Okay. Wait. Give me a second then. If my voice, give me a minute. Okay, guys. So please check at your ends. It's fine from our side. So today, as you know, अच्छा 4 day क्लास. तो ये बच्चा ये 4 दिन का मिनी कोर्स है, आप सबको पता है. So in today's session we are going to discuss about health and disease. तो बच्चा आज की क्लास में हम हेल्थ और डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. So डिजीज क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं, ठीक है, what actually the health is. ठीक है. There are quizzes too, but पहले बच्चा we are going to understand the topic. पहले हम कॉन्सेप्ट को बताएंगे, उसके बाद हम ठीक है क्वेश्चंस करेंगे. Wait, just a minute. Wait for a second, guys. Yeah, wait for a second, guys. Let me have a. Okay. Just a minute, guys. Am I audible enough? क्या अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है. Am I audible enough now? अभी ठीक है आवाज? Okay, that's great. Fine. चलिए. So as I told you, आपने ऑटो रोटेट बंद किया होगा. मे बी हैव अ लुक प्लीज. ठीक है. Okay, fine. चलिए, that's fine. So as I told you, today we are going to talk about, ठीक है. Today we are going to talk about health and disease. So yes, guys, I hope that everybody is settled down now. Okay, this is all about me. You can have a look. I have completed my like masters in botany. Okay, so basically you have to follow some of the rules of the class. That first of all you need to be attentive. हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना है पहले. Then ask your doubts because many of your doubts
समझाने से पहले अगर आप डाउट पूछेंगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जब मैं पढ़ाऊंगी तभी क्लियर हो जाएंगे. यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी अटेंटिव. ठीक है, प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्विजेस, सारे क्विज को अटेम्प्ट करिए. देयर माइट बी नेटवर्क इश्यूज समटाइम, सो प्लीज बी पेशेंट विद द सेम. ठीक है, एंड यस, दिस इज योर लर्निंग साइकिल दैट यू हैव टू अटेंड द लाइव क्लासेस, जैसे कि आप अभी अटेंड करेंगे. ठीक है बच्चा, स्टडी नोट्स अपलोड हो जाते हैं डैशबोर्ड पे. आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द सेम. ठीक है, इज इट द प्रॉब्लम इज द वॉइस? अभी भी प्रॉब्लम क्या है क्या? ओके फाइन, प्लीज अपने फोन का एक बार वॉल्यूम इंक्रीज करके देखिए, बिकॉज आई थिंक आई एम ऑडिबल टू मेनी ऑफ यू. जिसको डाउट है, जिसको कोई दिक्कत आ रही है, एक बार थोड़ा सा अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा के देखिए. ओके, then the study notes, they get uploaded on your dashboard, so you have to study the study notes. आप क्लास से पहले भी पढ़ सकते हैं, एक बार क्लास के बाद तो पढ़ना ही पड़ना है. You have to attempt the quizzes after class quizzes, ग्रुप में जो quizzes होंगे. ठीक है, and yes, assignment too, you have to attempt the assignment too. Next very important thing is that I hope that all of you have installed the telegram group yet. ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है, एक मिनट रुक जाओ, फिर वेट फॉर अ सेकेंड. हाँ हाँ, मैं अभी क्लास लेने जा रही हूँ. ठीक है, क्लास अब थोड़ा सा इश्यू है, बट एक बार आप चेक कर लीजिए, तब तक मैं लेती रहूंगी. ठीक है, okay, fine, I think it's fine now. I have just closed my camera so that the person can check the voice. I think it's fine now. I think I'm audible enough now. ठीक है, please guys use the, okay, I'm not using the microphone, there is no problem with my laptop and anything. एक बार आप अपनी साइड से भी चेक कर लीजिए. ठीक है, even my, ठीक है, tech team member, they are looking into it. चलिए, so these are some of the things, okay, which you all have to take care. ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कि आप सबको ध्यान देनी है. that you have to attend the live class, then you have to study the study notes, assignments and quizzes. okay, and there are many questions. ठीक है, तो आपके इंटरेक्टिव भी होंगे और उसमें तो अच्छा परफॉर्म करना ही. चलिए नेक्स्ट. So how many of you have idea what actually is being healthy? हेल्थ का मतलब क्या होता है? आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि what do you mean by health? Okay, how many of you are aware about the word health? I think it's okay now. Fit person. Okay, fine. Anybody else? Physically and mentally fit. अच्छा, चलिए बहुत सही. Yeah, that's great. Fine. So many of you are saying, ma'am, health का मतलब है fit रहना. Okay, so let us talk about what actually being healthy is. If I am having headache, obviously it means I'm not healthy. If I am having any kind of uneasiness, अगर मुझे किसी तरीके का uneasiness है, मुझे किसी तरीके का मेरे comfort है, तो बच्चा मैं ये कह दूंगी कि मैं healthy नहीं हूँ. ठीक है, सो पहली बात तो ये आ गई कि आई एम नॉट फिजिकली फिट. ओके,
मुझे एक हो रहा है, आई एम हैविंग हेडेक, आई एम हैविंग स्टमक एक और एनीथिंग which means I'm not physically fit. Apart from that, a person is said to I'm not having any kind of disease. मुझे किसी तरीके की बीमारी नहीं है. It doesn't mean I am healthy. Please listen my word carefully. I am disease free. It doesn't mean that I am healthy. So they both are different word, being healthy and being disease free. ठीक है, बीमारी ना होना और हेल्दी रहना ये दोनों एक अलग अलग शब्द हैं. देयर इज अ क्वाइट, ठीक है, देयर इज अ थिन ट्रांसपेरेंट लाइन जो इन दोनों को अलग करती है. अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी. एक पर्सन को हेल्दी तभी कहा जाएगा व्हेन अ पर्सन इज फिट मेंटली, सोशली एंड फिजिकली. ठीक है, फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है एंड सोशली भी फिट है. ठीक है, टॉकिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, ये होता क्या है. ठीक है, मैं देखने में आपको फिट लग रही हूँ, ठीक है, तो यू विल से मैम यू आर फिट, फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम. बट इफ आई एम इरिटेटेड, मैं हमेशा इरिटेट हो रही हूँ, आप जो भी बोल रहे हो, आई डोंट वांट टू रिप्लाई, सो यू वॉन्ट, ठीक है, तो बच्चा ये नहीं कहा जाएगा कि मैं दैट आई एम हेल्दी, I'm unhealthy. ठीक है, मैं mentally unhealthy हूँ, irritated हूँ all the time. ठीक है, या फिर like I'm depressed. Okay, and yes, socially means that the person is not socially connected. The person is not he is not able to understand how to contact in the different persons in the neighbor. जितने लोग हैं उनके नेबर में उनसे कैसे कांटेक्ट करना है. ठीक है, तो बच्चे हेल्थ का मतलब होता है आपको मेंटली भी फिट रहना है, आपको फिजिकली भी फिट रहना है, आपको सोशली भी फिट रहना है. WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन यही दी है that health is a state of mental, physical and social well-being. ठीक है, मेंटली तो रहना ही, फिजिकली तो पता ही है सबको, मेंटली भी फिट रहना है और सोसाइटी में भी. ठीक है, या being irritated means we are not mentally fit, as well as if we are like we just think about, sometimes it's like we are like we take garbage and we will throw it here and there. We don't take care of the society. We are not talking to any person in our neighbor. हम irritated रहते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं. So we have to be social. ठीक है, if a person is able to like you have to be quite social also if you want to be healthy. तो ये बच्चा एक health की डेफिनेशन कहलाती है कि एक आदमी जो कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है, हम बोल देंगे कि वो पर्टिकुलर इंसान हेल्दी है. ठीक है, तो हेल्थ इज ऑल अबाउट माइंड, बॉडी एंड सोल. ठीक है, नाउ so this you have to jot it down somewhere that April 7th is the World Health Day. ठीक है, social means what kind, ma'am? Okay, social means dear, basically you need to be like, if there are some person in your society, I'll tell you, if there is some person in your society and he came and he greeted you, okay, good morning, and anything in any way, so you have to be greet equally. आपको अच्छे से बात करना चाहिए. You have to be think about society too. ठीक है, आपको अपनी सोसाइटी के बारे में थोड़ा सोचना भी चाहिए. ठीक है, आप लोगों के साथ रहना चाहिए. मे बी यू गो टू, अभी के बारे में बात है, ठीक है, अभी के बारे में तो हम नहीं कह सकते कि दैट यू गो इन अ क्राउड और समथिंग लाइक दैट, बट ठीक है, when there is no pandemic or something like that, तो आप सोसाइटी के लोगों से बात करिए. दिस इज बेसिकली you have to be socially fit. Mentally means आप खुश हैं, आप irritated नहीं हैं. ठीक है, और you are responding to the people. ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई आपसे आके बात करना चाहता है and you feel like irritated all the time, आपको गुस्सा ही आता रहता है. If there is any situation in front of you, you are not able to handle that particular situation, तो we'll say that the person is not mentally fit. ठीक है, आपसे कोई नॉर्मल बात कर रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो, आप बताना नहीं है. ठीक है, तो बच्चे ये हो गया आपका हेल्थ का डेफिनेशन. ठीक है, एंड यस डियर, यू हैव टू रिमेंबर द डे एज वेल. या डिप्रेस्ड मीन्स ऑल्सो मीन्स नॉट बीइंग हेल्दी. The 7th April, okay, you have to jot it down this day. ठीक है, you have to jot it down this particular day, that April 7th. I feel shy and afraid in front of relative. That is but obvious. अगर हमसे कोई नया इंसान मिल रहा है, हम थोड़ा सा shy होते हैं, but it doesn't mean that we are not mentally fit.
ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप कभी बात नहीं करते उनसे, आप जाइए, इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट मेंटली फिट, बट ट्राई टू टॉक टू देम, ठीक है, okay. It doesn't mean that you are unhealthy, you are mentally unfit. Yes, yeah, that's true that you are introvert. We cannot say you, okay. तो बच्चा इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिट नहीं हैं, ठीक है, ये एक आपकी सोसाइटी, ये एक आपका बिहेवियर है, ठीक है, ये आपका नेचर है, ओके. एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल, बट इसका मतलब ये है बच्चा कि आपको लाइक मेंटली फिट होने का मतलब ये है दैट इफ देयर इज एनी सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि हम उस सिचुएशन को डील कैसे करें जो कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो बच्चा उसको कहा जाएगा इफ यू आर एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली मीन्स यू आर मेंटली फिट, ठीक है. सोशली मतलब बच्चा आप सोसाइटी में कैसे रिएक्ट करते हैं. Talking about the next point is being healthy. Yeah, anxiety is a kind of stress, ठीक है, is a kind of mentally unfit stress. Yes, ठीक है. The word soul denotes what kind of बेसिकली बच्चा सोल के अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है. सोल मतलब आप अंतरात्मा से खुश हैं कि नहीं. इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड मीन्स, ठीक है, इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड इट मीन्स ओनली सोल, ठीक है. तो बच्चा अगर आप अंदर से खुश हैं इट मीन्स यू आर हेल्दी, ओके. बच्चा डाउट महेश. चलिए बच्चा, तो हेल्दी और डिजीज फ्री के बारे में बात करते हैं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अ डिजीज फ्री इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, ओके. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. एक बीमारी ना होना का मतलब ये होता है कि उस पर्सन को किसी तरीके की बीमारी नहीं है. हेल्दी पर्सन का मतलब ये होता है, जस्ट अंडरस्टैंड इट, द वन हु इज एबल टू परफॉर्म नॉर्मली अंडर गिवन सिचुएशन, ठीक है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. जैसे मैंने आपको बताया, आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाती है, हाउ यू आर रिएक्टिंग इट, ठीक है. if you are able to perform your best, if you are able to give your best in the given situation, it is called as being healthy, okay. So this is a thin line of difference between being healthy and being disease free, ठीक है. Is it clear to all of you, or if you have any doubt you may ask, ठीक है. Healthy, the word healthy means basically if we talk about disease free, we are talking about an individual. मैं बोलती हूँ कि मैं disease free हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बट बच्चा जो word healthy, ठीक है, जो बच्चा word healthy आता है, ठीक है, basically it take into consideration about the environment too, कि आपका environment कितना healthy है, आपका surrounding कितना healthy है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू आर डिजीज फ्री, बट आप क्या करते हो, आप चिप्स खाते हो, यू ईट चिप्स एंड यू थ्रो इट हेयर एंड देयर, ठीक है. रैपर लेते हो एंड यू थ्रो इट हेयर एंड देयर, ओके. सो इट डजंट मीन कि आप यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर सोसाइटी, आप अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे हो. इट मीन्स यू आर नॉट सोशली फिट, ओके. Yeah, so in that condition it means that you are not socially fit, you are disease free but you are not socially fit. तो disease free बच्चा एक individual person की बात कर रहा है, ठीक है. while healthy बच्चा एक society को, एक environment को सारी चीजें लेने की बात कर रहा है. how the person be normal always, Molima, it doesn't mean that basically, ठीक है. Okay, basically बच्चा the word means that normal under given situation, it means that basic panic तो होता है, ठीक है. given definition don't clear the individual means एक इकलौता इंसान. and just think about it, okay, just इसको ऐसे सोचिए, ये एक पर्सन है, ठीक है, इसको किसी तरीके की बीमारी नहीं है, ठीक है. इसके हर अंग, इसका हर एक बॉडी पार्ट बहुत आराम से काम कर रहा है, ठीक है. बट ये पर्सन क्या करता है बच्चा, ये चिप्स खाता है, रैपर यहीं पे फेंक देता है, ठीक है. ये जो भी कचरा होता है यहीं पे आके फेंक देता है. when his mother or when her mother, ठीक है, just please understand it, when her mother comes and like वो कुछ बोलती है इनको that why are you throwing the garbage here and there, he start like
ये इरिटेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये इरिटेट होना शुरू हो जाता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, अच्छे से बात नहीं कर रहा, सो विल से दैट द पर्सन इज नॉट फिट, द पर्सन इज socially not fit, he is very irritated, he is mentally not fit, ठीक है, okay, is it clear to all of you? I hope that the definition is clear to all of you, okay. बच्चे नॉर्मल होने का मतलब है how the person be normal means dear, for example if I say that you have a surprise test tomorrow, ठीक है, you have to take care that particular situation, आपको situation को लेना है, उसको समझना है, okay I have a test tomorrow, I will try to give my best, ठीक है, you have to think in this way, it's not like that I'm not gonna do it, I'm not gonna write it or something like that, there is no need to be like stress नहीं होना है, anxiety होने लग जाएगी, ठीक है. Yes Mahesh, the definition was given by World Health Organization, ठीक है, I think I have replied to your doubt, ओके. तो ये बात कर रहा है बच्चा, ये बात करता है एक इंडिविजुअल की, ये बात करता है कि आप अपनी सोसाइटी को, अपने सराउंडिंग्स को कितना क्लीन रखते हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो. तो ये इंडिविजुअल की बात करता है, ये सोसाइटी के बारे में भी बात करता है. मैम हाउ सोशल थिंग लाइक टॉकिंग विद नेबर अफेक्ट, इट डज, it affects our mental health. Sometime I think when you have your exam tomorrow and like इसको ऐसे ऐसे समझने की कोशिश करिए that you have your exam tomorrow and you were not like you are not healthy, you are not fit, ठीक है, आप healthy नहीं हैं, आप पैनिक कर रहे हो सिचुएशन में और आपको पता चला, ठीक है, सो यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, आप बहुत पैनिक सा फील कर रहे हैं, सो व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू योर पेरेंट्स और यू विल गो टू योर टीचर और यू विल गो टू योर फ्रेंड्स और सिबलिंग्स, आप किसी के पास जाएंगे और आप उनसे बात करेंगे. सो जब आप उनसे बात करते हैं देन यू फील मोटिवेटेड, तो बच्चा आप मोटिवेटेड होना फील करते हैं, ठीक है. सो बच्चा विल से दैट आप मोटिवेट होना फील करें, व्हाई यू आर फीलिंग मोटिवेटेड, आप किसी से बात करके मोटिवेट होना फील करते हैं. सो शेयरिंग योर प्रॉब्लम विद समवन, ठीक है, इट काम यू एज वेल, आपको भी काम करता है, इसीलिए बच्चा आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, इसीलिए तब दैट वाई द वर्ड सोशल कम्स अंडर दिस कंसिडरेशन. I hope it's clear, जिसने भी पूछा था. What happened Vanya? What's your doubt dear? Now, talking about disease, ठीक है? I think it's clear to all of you. Yes, Vanya. What's your doubt? कुहेली will start dear. Wait, पहले concept पढ़ लें, फिर बच्चा questions होंगे. Questions will take in the end. First of all, we'll understand the concepts. चलिए, talking about the disease. Yeah, it's clear from its word only, ठीक है. मानसी wait, we'll talk about that also. बच्चा मैंने बोला ना कि आपके सारे डाउट्स इसी में क्लियर हो जाएंगे, पहले आप सुन लीजिए, ठीक है. Disease, the word disease, if I split this word disease, it means itself disturbance in the ease, ठीक है, uneasiness होना, like आपके कंफर्ट में कोई डिस्टर्बेंस आना, ठीक है, आपके बॉडी की सारी चीजें आराम से चल रही थी, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आराम से चल रही थी, ठीक है. तो बच्चा अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है, इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस इन द कंफर्ट, वी कॉल्ड इट एज डिजीज, ठीक है, which means disturbance in the ease. Ease means comfort, ठीक है. आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस थे, दे वर वर्किंग प्रॉपरली, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक ऑल द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि आराम से रेस्पिरेशन हो रहा है, सब आराम से हो रहा है, सारी चीजें आराम से हो रही है. अगर बच्चा उसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है तो हम उसको डिजीज कहते हैं, ठीक है. एज वेल एज, जैसे कि मैंने आपको हेल्थ की डेफिनेशन में, ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन में हमने मेंटल और सोशल की बात की थी, तो इसी तरीके से बच्चे अगर साइकोलॉजिकली भी आपके वाइटल फंक्शंस डिस्टर्ब्ड होते हैं तो उसको डिजीज कहा जाएगा, ठीक है. ईज मीन्स कंफर्ट, सो डिस्टर्बेंस इन योर कंफर्ट, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है. Okay, so this is basically disease. What is disease? Disease is a condition of the body in which various functions of the body are disturbed. हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं. फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स बच्चा आपकी बॉडी में जो भी रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह हो रहा है, दैट इज
physiological. Talking about psychological, तो dear okay, talking about the psychological, it is related to your brain. ठीक है, आपका mind. Okay, am I clear to all of you? Okay, I'll repeat it again. So basically, what you are saying Venya, हमें समझ ही नहीं आ रहा. ठीक है? Okay, okay. Talking about disease. ठीक है? तो मैंने physiological means, I'm repeating it again. Physiological means आपके body के अंदर के जो भी life processes हो रहे हैं बच्चा, उसको physiological कहा जाएगा. Psychological is related to your mind. Okay, is related to your mind. Physiological and psychology. Psychology is related to your mind ना, brain वगैरह की पढ़ाई करना psychology कहलाता है ना. ठीक है, क्या सोच रहा होगा कोई, तो बच्चा अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आएगी साइकोलॉजिकली तो उसको भी डिजीज कहा जाएगा. ठीक है, बेसिकली माल फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल स्टेट. अगर हम इसको बात करते हैं बच्चा, so basically it is malfunctioning of the normal state of the living organism is disturbed. Okay, if there is any malfunctioning of the normal state of the living organism, we call it as disease. I hope that it is clear to all of you. मौलिमा हेल्थ की डेफिनेशन याद करिए बच्चा. हेल्थ में हमने किस किस को किया था. माल फंक्शन मतलब बच्चा अच्छे से फंक्शन नहीं करना. नाउ टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज. बच्चा आपको कैसे पता चलता है कि आपको कोई बीमारी है? टेल मी. व्हेन यू गो टू डॉक्टर. माल फंक्शनिंग मतलब बच्चा अच्छे से काम ना करना. थैंक यू कुहेली. चलिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज. व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज? आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ओके, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, उसको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू वर सेइंग समथिंग, क्या कह रहे थे आप? जस्ट टेल मी. ओके, if a person is suffering from common cold, how a person will feel, how a person, उसको कैसे पता चलेगा? मैम, when doctor take a test. Okay, fine. Okay, so basically all of you are saying, ma'am, with the help of a symptoms, a person will be able to identify that particular person is suffering from a disease. तो बच्चा इसको समझने की कोशिश करिए. ठीक है, उसका शरीर गर्म होगा, रनिंग नोज, कॉफिंग, ईची नोज, टायर्ड एंड लेजी, सिम्टम्स अपीयर. हाँ जी, दैट्स ग्रेट. So basically, dear, what do you mean by symptoms? If a person is suffering from, let us consider that a person is suffering from dengue and a person is suffering from common cold. ठीक है, both the person, there are two persons, both will feel something and then they will go to doctor. Both the person will feel something and they will go to doctor. Both will report to the doctor that I am having fever. इसने भी बोला कि मुझे fever है, इसने भी बोला that I am having fever. Now doctor will say that you are suffering from dengue while you are suffering from common cold. I am repeating it again. There are two persons, A and B. Both went to a doctor and said that we are having fever. So doctor will say that you are suffering from dengue and you are suffering from common cold. Now, so basically, दो इन दोनों ने डॉक्टर को बताया, what they said to the doctor, they said the symptoms they are feeling. Okay, so basically symptoms are felt and noticed by patients. Yes, correct. तो बच्चा symptoms है, वो क्या होता है? वो डॉक्टर, वो जो पेशेंट होता है वो फील करता है, वो नोटिस करता है और वो डॉक्टर के पास जाता है. हाँ जी, कोरोना भी हो सकता है, सही बात है.
सो बेसिकली सिम्टम इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, सिम्टम ये बताता है कि कोई बीमारी होगी, ठीक है। एक बीमारियों बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, ठीक है। Okay, for example, fever is a symptom of common cold, is a symptom of dengue, is a symptom of COVID-19, is a symptom of so many disease. ठीक है, now, ठीक है, now talking about the sign. So basically, if they both went to doctor, doctor ने कुछ तो कहा होगा, ठीक है, डॉक्टर ने कुछ तो कहा होगा, डॉक्टर ने कुछ तो देखा होगा, that doctor will said कि okay, you go for a dengue test while you are suffering from common cold. So बच्चा, if you talk about the sign, they are indication which doctor finds. ये वो indications होते हैं जो कि डॉक्टर बताता है, okay? They are distinct for different disease, ठीक है, ये अलग डिजीज के लिए अलग अलग होते हैं, एंड दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर डिजीज, ये पर्टिकुलर बीमारी के इंफॉर्मेशन देते हैं. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. The difference between the symptom and sign is clear to all of you. That symptom indicate the presence of disease, while sign बताता है कि भाई कौन सी बीमारी है, ठीक है. Yes. ओके, सिम्टम बच्चा, ओके, सिम्टम बच्चा ये बताता है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज. साइन आपको ये बताएगा कि भाई कौन सी बीमारी है, ओके. मैनिफेस्टेशंस मतलब आपको जो भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो मैनिफेस्टेशंस कहलाएगा बच्चा. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, शैल वी मूव अहेड, हम आगे बढ़ सकते हैं. हाँ जी, ओके. साइकोलॉजिकली बच्चा, साइकोलॉजिकली दिमाग से रिलेटेड होता है. चलिए, फाइन, ओके. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट सिम्टम्स, थर्ड पॉइंट ऑफ साइन. साइन आर इंडिकेशन विच द डॉक्टर फाइंड्स ऑब्जेक्टिवली. मतलब बच्चा, साइन वो सिम्टम, साइन बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है, साइन बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जो कि डॉक्टर देख के बताता है कि आपको कौन सी बीमारी है. फीवर इज अ सिम्टम, ऑब्वियसली इट इज फेल्ट बाय पेशेंट. ओके, मुझे कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गई, तो वो कहलाएगा सिम्टम. डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई आपको ये बीमारी है, ठीक है, वो बच्चा साइन कहलाएगा. ओके, नो, व्हाट कैन बी द डिफरेंट कॉज ऑफ डिजीज. चलिए, मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ. ओके, if a person is suffering from diabetes, what will be the reason? I'll repeat it again. A person is suffering from diabetes, what will be the reason? एक इंसान डायबिटीज से गुजर रहा है, ठीक है, उसका रीजन क्या होगा? Harmful microbes, cleanliness, diabetes, okay. Lots of sugar eaten by him, okay. Sugar, fine. Is it so? Okay, that's great. Due to, okay, love kush, that's great. Extra production, okay. चलिए, now सो बेसिकली पहला तो मैंने क्वेश्चन लिया था आप लोगों को, ठीक है, पहला तो मैंने क्वेश्चन बोला था आप लोगों को, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, तो रीजन क्या होगा. नेक्स्ट, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम COVID-19, रीजन क्या होगा. अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम COVID-19, व्हाट विल बी द रीजन. ओके, ओके, अशोक, चिंकू, एवरीवन. हेडेक, रीजन हेडेक होगा.
Yeah, reason will be virus. Okay, fine. Now, coronavirus. Okay, yep. Reason is ना, जब तक बच्चा yes, not maintaining social distancing. Okay, cold and cough, COVID-19, mental. Nothing. बच्चा कोरोना क्यों हुआ, COVID-19 क्यों हुआ, उसकी बॉडी में कोरोना वायरस ने एंटर किया बच्चा, ये रीजन था. If coronavirus will not enter inside his body, if the coronavirus will not enter inside the body of the person, उसको COVID-19 नहीं होगा. ठीक है, अगर जब तक ये वायरस उसकी बॉडी में नहीं जाएगा उसको COVID-19 नहीं होगा. ठीक है, नहीं 6:30 से, हाँ देख 6:30 में है ना इंडिया पे तो. ओके, नाउ थोड़ा सा वो करते हैं. ग्रेट कंजंक्शन है ना, आई थिंक सबको पता होगा. आर यू गाइज अवेयर अबाउट ग्रेट कंजंक्शन, जब दो प्लैनेट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं. आज इंडिया में तो 6:30 को दिखेगा ना, 6:30 to 7:30 राइट इन इंडिया ग्रेट कंजंक्शन. ओके चलिए, यप 6:30 को देखेंगे फिर. ग्रेट कंजंक्शन एक फिजिक्स में है, आई थिंक लाइक ये एक फिनोमिना होता है. फिनोमिना बेसिकली आप कहेंगे जब दो प्लैनेट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं. ठीक है, ये 400 इयर्स बाद हो रहा है. 6:30 पे इंडिया में दिखेगा. देख सको तो बताना, टेक पिक्चर्स इफ पॉसिबल, अगर आपके फोन से आती है अच्छी तो. जिसको नहीं पता जाके ग्रेट कंजंक्शन के बारे में पढ़ना. ठीक है, चलिए अभी पहले हम बायो पढ़ लेते हैं फिर. यस यू कैन. ठीक है, यू कैन. पहले बायो पढ़ लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट दैट. चलिए फाइन, थोड़ा सा बायो पढ़ लेते हैं. ओके चलो. नाउ सो टॉकिंग अबाउट, तो मैंने आपको बच्चा दो डिजीज के बारे में बताया था. ठीक है, मैंने आपसे दो डिजीज के बारे में पूछा था, डायबिटीज एंड COVID-19. सो डियर डायबिटीज, या जुपिटर इज अलाइनिंग द सैटर्न. चलिए, सो बेसिकली डियर COVID-19 पर्सन को तब तक नहीं होगा जब तक कोरोना वायरस विल नॉट एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट. ठीक है, talking about the diabetes, so I'm talking about a type of diabetes in which there is less secretion of insulin. Okay, तो जब बच्चा इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है तब डायबिटीज होता है. नाउ सो इफ यू टॉक अबाउट द COVID-19, ये किसकी वजह से हो रहा है? देयर इज समथिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी एंड इट इज एंटरिंग इनसाइड अ बॉडी. ठीक है, तो बच्चा क्या है, ये जो कोरोना वायरस था ये हमारी बॉडी में बाहर से आया. सो इसका कॉज क्या था? इसका कॉज कोई एक्सटर्नल कॉज था जो कि हमारी बॉडी में नहीं था. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द डायबिटीज डियर, द कॉज इज प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी. जो कॉज था बच्चा वो मेरी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट था. ओके, सो विल कॉल्ड इट एज इंट्रिंसिक फैक्टर. इंसुलिन बच्चा एक हार्मोन होता है, इसका अगर सिक्रीशन कम होता है तो उसकी वजह से डायबिटीज होता है. ठीक है डियर, सो बेसिकली इफ वी आर स्टडिंग द कॉज ऑफ द डिजीज, ठीक है, द स्टडी इज कॉल्ड एज etiology एंड द कॉज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, extrinsic and intrinsic. Molema virus is a cause, dear. Virus is not neither a sign nor a symptom. It is a cause. Okay. So dear, extrinsic cause is the cause which is not present inside our body and जो कि बाहर से आ रहा है, external cause है. Intrinsic cause is the cause which is present inside our body and वो अंदर से आया. So it is the internal cause. ठीक है? I hope it's clear to all of you.
Extrinsic means external and intrinsic means internal. For example, in COVID-19, the cause is coronavirus, which was not present inside our body and it is coming from from outside. Talking about the intrinsic ones, ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब बच्चा जो कॉज है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में अंदर से ही प्रेजेंट है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होना जिसकी वजह से डायबिटीज होगा, तो कॉज बाहर से तो नहीं आया, कॉज तो बॉडी के अंदर से था. सो देयर कैन बी टू कॉजेज. ओके, या इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ऑब्वियसली. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं डियर, तो किसी भी बॉडी पार्ट का अच्छे से काम ना करना. बच्चा, फीवर कॉज नहीं है, फीवर सिम्टम है, ठीक है. किसी भी बॉडी पार्ट का अच्छे से काम नहीं करना, माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट. अगर आपका कोई बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सो द कॉज इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर. आपके जो डीएनए है, ठीक है, उस पे कोई दिक्कत है, सो द कॉज इज प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी. आपके जो हॉर्मोन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है, ठीक है, इन सब का सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है. सो हार्मोन का सिक्रीशन या तो ज्यादा होना या तो कम होना, ठीक है, मतलब जो सिक्रीशन है वो प्रॉपरली नहीं होना इज कॉल्ड एज हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है. आपका जो इम्यून सिस्टम जो कि डिजीज से फाइट कर सकता है, वो काम नहीं कर रहा है अच्छे से. वो क्या कर रहा है, वो खुद के सेल्स को ही खाता जा रहा है, ठीक है. सो डियर, बेसिकली the cause is inside your body. So when the disease, the cause is intrinsic source, mainly the diseases are called as metabolic diseases. Is it clear to all of you? ठीक है, intrinsic means internal, ठीक है. जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब बच्चा जो आपका डीएनए है ना, उस पे कोई दिक्कत आई है, ओके, जो आपका डीएनए है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है, या फिर जो आपका क्रोमोसोम है उसका नंबर बढ़ गया है, उसका नंबर कम हो गया है, मतलब आपके जीनोम में जो है उस पे कोई दिक्कत आई है, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. मोनिमा, दे आर फेल्ट बाय डॉक्टर, ठीक है, दे आर फेल्ट बाय, दे आर बेसिकली बाय डॉक्टर. वो टेस्ट लिखेंगे आपको. I'll repeat it again. इंटरनल इज इंट्रिंसिक, बॉडी के अंदर ही कॉज होगा, ठीक है, बाहर से कॉज नहीं है. एग्जाम्पल, आपका बॉडी पार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके. जेनेटिक डिसऑर्डर है, मींस इधर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल इंक्रीज और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल गेट डाउन, ठीक है. व्हाट्स योर क्वेश्चन डियर? हार्मोनल इम्बैलेंस है, which means your hormone is not secreting, your glands are not secreting the hormone properly. या तो ज्यादा secrete कर रहा है या तो कम secrete कर रहा है. माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ठीक है. यप वेन्या, यस, ठीक है. सो द डिजीज कॉज्ड बाय इंट्रिंसिक सोर्सेज, दे आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक डिजीजेस, ठीक है. चलिए बच्चा, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, हार्मोन ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, हार्मोन ऐसे केमिकल्स होते हैं डियर, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. ये सारी डिजीज जो इंट्रिंसिक सोर्स की वजह से होंगे, जिनका कॉज इंट्रिंसिक होगा, मेनली को कॉल्ड एज मेटाबॉलिक डिजीज, मेनली दे आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक डिजीज. जेनेटिक डिसऑर्डर के एग्जांपल हैं डियर, डाउन सिंड्रोम, ठीक है. हार्मोनल इम्बैलेंस का एग्जांपल है डियर डायबिटीज. माल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम का है बच्चा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. Okay, there is quiz. I hope it's clear to all of you. Hormonal imbalance, when the hormone is not secreting, or okay, when the hormone is ज़्यादा secrete हो रहा है या फिर कम secrete हो रहा है. No, cancer, basically dear, cancer के अलग अलग reasons होते हैं. The main thing is that, ठीक है, the main thing is that कि the cells will divide abnormally,
चलिए एक्सट्रिंसिक के बारे में बात कर रहे हैं। आप बराबर से खाना नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग एडिक्वेट डाइट, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट ईटिंग यू आर जस्ट ईटिंग दी जंक फूड्स, आप जंक फूड्स कर रहे हैं बच्चा, ये जो होगा ना डायबिटीज बच्चा, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इंट्रिंसिक सोर्स से ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होती हैं, क्योंकि उसमें आपका, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, ठीक है, गोइटर। नाउ पैथोजन, दे आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, तो बच्चा ये बाहर से आ रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। पॉल्यूटेंट, ये बाहर से आ रहा है, इट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी। आप इफ समवन इज टेकिंग अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, और उससे कोई उनको बीमारी होती है, ठीक है, ओके, उससे कोई उनको बीमारी होती है, विल कॉल इट एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर और दी इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, ड्रग्स, ड्रग्स आर द केमिकल बेसिकली जो कि आपके नर्वस सिस्टम पे सीधे इफेक्ट डालता है। अगर जो कॉज है वो बाहर से है, ठीक है, अगर जो कॉज है वो बाहर से है, ठीक है, टोबैको मीन्स तंबाकू, ठीक है, we called it as, okay, we called it as extrinsic factor or extrinsic cause. Narcotic drugs basically they are the drugs जो कि आपके nervous system पे सीधे affect डालते हैं। Okay, so these are basically the external factor. So I hope that this is clear to all of you. Anyone, any doubt? चलिए, what is narcotic means, dear? The one which is toxic. Pathogens are the disease causing microorganism. तो बच्चा डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे जो जंतु होते हैं उनको पैथोजन कहा जाता है। नाउ ओके, टॉकिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ द डिजीज, ठीक है, टॉकिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ द डिजीज। तो डियर, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज, सेकेंड लेवल ऑफ कॉज एंड थर्ड लेवल ऑफ द कॉज के बारे में हम बात करते हैं। नाउ एक पर्सन है डियर, इनएडिक्वेट मतलब बच्चा अच्छे से, सही से नहीं। नाउ एक्सेप्ट कोविड-19 एक्सटर्नल फैक्टर के एग्जांपल्स डियर, ठीक है, सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है, एट 6 टोटल गेमिंग एट 6, यही डाउट था बच्चे, इतनी देर से इसी डाउट के लिए परेशान हो रहे थे, एट 6। चलिए, नाउ एक पर्सन है जिसको वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, जिसको लूज मोशन हो रहे हैं, we will say that the person is suffering from cholera. A person is having, ठीक है, a person is suffering from stomach ache, vomiting, loose motion, water loss उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। So basically we will say that the person is suffering from cholera. तो बच्चा कॉलेरा किस वजह से होता है? Anyone, any idea? कॉलेरा एक बीमारी है, वो किस वजह से होती है? I'll repeat my question again. I'll say that a person is having stomach ache, उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, ठीक है, और बेसिकली उसको वॉमिटिंग्स हो रही हैं. So yes, that's great. All of you are saying, ma'am, because of the bacteria. Yes, obviously, bacteria से. So a bacteria that is called as Vibrio bacteria, Vibrio cholera, it results in the, I'll repeat it again, Vibrio cholera जो एक बैक्टीरिया है डियर, ठीक है, वो कॉलेरा कॉज करता है. अब विल से how the bacteria enter inside the person's body.
तो बच्चा बैक्टीरिया पर्सन के अंदर कैसे एंटर किया? इट एंटर्स थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर. लेट अस टेक एग्जांपल कि इसने क्या किया था, इसने कंटामिनेटेड वाटर इनटेक किया था. So this contaminated water will be the second cause. Now talking about the next cause. वो उस पर्सन ने कंटामिनेटेड वाटर क्यों लिया? बिकॉज द चाइल्ड वॉज नॉट लिविंग इन द एरिया, बिकॉज द चाइल्ड वॉज नॉट लिविंग इन द एरिया जहां पे सफाई हो, ठीक है, जहां का इन्वायरमेंट क्लीन हो. वाई द चाइल्ड वॉज नॉट लिविंग, ठीक है, while the child was not living in a clean environment, क्योंकि उसके पास प्रॉपर पैसा नहीं था. he was living in slum, ठीक है. तो बच्चा poverty is contributing, is also contributing. okay, so which means dear, basically जो first level of the cause होता है वो डिजीज का, वो बीमारी कॉज कर रहा है, ठीक है. जो पोवर्टी था डियर, वो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज था, वो कॉज कर रहा था, ठीक है, वो खुद बीमारी का कारण नहीं था. इट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट, ठीक है. सो विब्रियो कॉलेरा विल बी द फर्स्ट लेवल ऑफ द कॉज, कंटामिनेटेड वाटर विल बी द सेकेंड लेवल ऑफ द कॉज, ठीक है. ओके, अनक्लीन इन्वायरमेंट विल बी एंड पोवर्टी विल बी द थर्ड लेवल ऑफ द कॉज. सो बच्चा ये जितने हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोवर्टी, ये बीमारी खुद नहीं फैला रहा है, ये बीमारी खुद कॉज नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, रीजन बन रहा है एक बीमारी का. ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, विल डू द क्वेश्चंस टू. आई होप दैट द लेवल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एनीवन, एनी डाउट? ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. एक चीज, पोवर्टी मीन्स गरीबी, पोवर्टी मीन्स गरीबी. ओके, आई थिंक लवकुश आपके क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी कर दिया गया है. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिजीजेस डियर, बीमारियां बच्चे दो वजह से हो सकती हैं, ठीक है. डिजीजेस डियर, basically the one which is present since birth. I'll repeat it again, just try to understand it. The disease can be broadly categorized into two categories. The one which means the one which is present since birth. जब पेशेंट का बर्थ हुआ था तब से वो इस बीमारी से, उसको ये बीमारी है. So congenital diseases are the diseases which are present since birth, while acquired is the one which person acquire after birth. अपने बर्थ के बाद उसने acquire किया है. Okay, fine. They can be of two type, infectious and non-infectious. ये दो तरीके की हो सकती हैं. Acquired, infectious, the one which is present. Okay, I'll repeat it again, infectious and non-infectious. So infectious मतलब बच्चा जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है. The one which can be transmitted from one person to another person. I'll repeat it again. Okay, I'll repeat it again. So non-infectious, the one which can be transmitted from one person to another, while non-infectious, the one which cannot be transmitted from one person to another. For example, if I am suffering from deficiency of vitamin C, मैं अपने, okay, quizzes there, have some patience. पहले समझ तो लीजिए बच्चा, समझना ज्यादा important है. I'll repeat it again. Congenital is present since birth से present है, since birth. Example आप ले लीजिए डाउन सिंड्रोम. Infectious, ठीक है, which can be transmitted from one person to another person. ठीक है. For example, ठीक है, acquired है ये, it is a kind of acquired disease. बच्चा acquired means after birth acquire करना. Okay, for example, अगर किसी पर्सन को कोरोना अभी हो रहा है तो वो आफ्टर बर्थ हो रहा है, ठीक है.
तो कोरोना बच्चा एक तरीके की ट्रांसमिटेड, एक तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज है, कॉमन कोल्ड 2, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम विटामिन सी की डेफिशिएंसी, दैट इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, इट डजंट मीन कि अगर आप मेरे पास हो तो मेरे से स्कर्वी आप में ट्रांसमिट हो जाएगी, नो। सो दीज आर दी नॉन इन्फेक्शियस वन, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल वन। इट इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन while it get transmitted from a person to another person. Yes, cancer, yes, yeah, diabetes, yes, yep, non infectious diabetes. I hope that this is clear to all of you. चलिए, तो बच्चा मैंने कॉन्जेनाइटल क्या बोला, नो डी, बच्चा उसके बर्थ के बाद, उसने बर्थ के बाद वो अक्वायर कर रहा है, ठीक है। Congenital is present since birth. Many of them, okay, basically they are genetic abnormalities, ठीक है। ये जो हमारे जीनोम में, ये जो हमारे जीन में कोई, ठीक है, ये जो हमारे जीन में कोई एबनॉर्मेलिटीज आती है उसकी वजह से होता है। निमोनिया इज ए इन्फेक्शियस वन, बट इफ यस बट डियर, ओके, वो उसने क्या किया बच्चा, एक्वायर, जो जनरली डिजीज अक्वायर्ड होती है बर्थ के बाद, ठीक है, तब बच्चा उसको अक्वायर्ड कहते हैं, वो तो ट्रांसमिट हुई ना अपनी मदर से उसमें, ठीक है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज दे आर परमानेंट एंड दे आर नॉट क्यूरेबल easily, okay, easily they are not curable, and yes they passed on to the children, ठीक है, ये बच्चों में पास ऑन होती हैं। जेनेटिक मीन्स द समथिंग विच इज रिलेटेड टू जीन, आई होप आपने जीन सेल चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, जन्म से ही प्रेजेंट है। क्यूरेबल मीन्स जिनका इलाज नहीं है, क्योर नहीं है, ठीक है, ओके। ओके, टॉकिंग हम एक पर्टिकुलर बच्चा, इफ यू टॉक अबाउट भाई आप लोग बात करें, मैम एक बच्चा जो है अगर उसकी मदर को कोरोना हुआ तो उसको कोरोना हो सकता है, तो वो कॉन्जेनाइटल में आ जाएगा। बच्चा, हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वो बीमारी हमेशा कैसे होती है, ठीक है। कोरोना तो बच्चा बर्थ के बाद अक्वायर किया जा सकता है ना, सो कोरोना विल कम इन द कैटेगरी ऑफ अक्वायर्ड वन, ठीक है। कोरोना विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ अक्वायर वन, ओके। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके बात नहीं करते हैं, ओके। सो यस, एक्वायर्ड जो कि डेवलप होती हैं आफ्टर द बर्थ, ओके, दे कैन बी इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉज्ड बाय पैथोजन, ठीक है, and yes they get transmitted from one person to another person, एक person से दूसरे person में transmit होती हैं। अस्थमा के बहुत सारे reasons होते हैं, ठीक है, okay। non-infectious are the disease which is restricted to the person who are suffering from it। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी की डेफिशिएंसी से अगर मुझे स्कर्वी हुआ है तो ये मेरे से आप में ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है, ये मेरे से आप में ट्रांसमिट नहीं होगा, ये मेरे तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होना, ठीक है। बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां होती हैं क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो डीजेनरेट, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो बुढ़ापे में डीजेनरेटिव डिजीज जिनको ओल्ड एज है उन्हीं को होगा, हमें ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। कैंसर इज ऑल्सो नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। किसी पर्सन की बॉडी में कोई रिएक्शंस प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, किसी पर्सन की बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो उस पर्सन से मेरे में नहीं होगा, ओके। इंजरी, डैमेज, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो अगर उसकी बॉडी में कोई डैमेज आया, ठीक है, उस पर्सन से दूसरे पर्सन में वो डैमेज ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विल अंडरस्टैंड वन मोर टॉपिक देन विल हैव अ क्वेश्चन, बस एक टॉपिक और समझना है उसके बाद क्वेश्चंस है। क्या इस तक किसी को कोई दिक्कत है?
So what we have talked about, we have talked about the definition of the health, we have talked about disease, उसके cause पढ़े हैं बच्चा, ठीक है, उसके cause पढ़े बच्चा external और internal. Then we have talked about the type of disease, in which we have talked about the congenital and the acquired. In acquired we have talked about the infectious and non-infectious. I hope it's clear to all of you. बच्चा कोरोना इन्फेक्शियस में आएगा, ऑब्वियसली है, ट्रांसमिट हो रहा है ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. नाउ कोई बीमारी कितने ड्यूरेशन तक रहती है? बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज कैन बी ऑफ टू टाइप, acute disease and chronic disease. acute disease फॉर एग्जाम्पल बच्चा, ठीक है, acute disease फॉर एग्जाम्पल बच्चा कॉमन कोल्ड. अब कॉमन कोल्ड ऐसा तो नहीं है ना कि आपको एक बार हो गया तो लाइफ टाइम रहेगा या फिर 2-3 साल तक रहेगा, नहीं, इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज. okay, while if we talk about a person is suffering, okay, or if we talk about chronic, for example a person is suffering from diabetes, ऐसा तो है नहीं ना बच्चे वो डायबिटीज जो है उसको आज होगी और एक हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी, नहीं. so diabetes is a chronic disease, it is a long lasting disease. okay, so disease can be of two types based on their duration, acute and chronic. acute is short duration disease, ठीक है, while chronic is long lasting diseases. is it clear to all of you? तो बच्चा बीमारी ज्यादा दिन तक रहेगी तो ज्यादा दिक्कत करेगी और ज्यादा वीक करेगी, ठीक है. बीमारी कम दिन तक रहेगी, ठीक है, तो उसका इफेक्ट कम होगा. दैट इज बट ऑब्वियस. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? okay, am I clear to all of you? Shall we move ahead? We do the questions. okay, acute disease, yeah, they're acute diseases, they come and they go. okay, fine. Malaria, yes, it is for less period of time, yes. चलिए, चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, launching the poll. okay, cancer is a disease caused due to the uncontrolled growth of tissues in any part of body, ठीक है. this disease comes under which of the following question? and the question is in front of you. launching the poll for the very first question. बच्चा प्रॉब्लम किस वजह से है सिद्धार्थ, वो भी तो मालूम होना चाहिए ना. अगर मुझे प्रॉब्लम पोल्यूशन से है तो वो कुछ दिन के लिए होगी, आप ठीक है. ओके, so we have 65% of you those who have marked it correctly. बच्चा कैंसर इज नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है, कॉन्जेनाइटल तो नहीं है, बर्थ से तो प्रेजेंट नहीं है. हम ब्रॉड कैटेगरी के टर्म्स में डिस्कस करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. next question, cancer is a disease, sorry, next question, water is very important for the activity, for the human, okay, for the human activity. तो अगर पानी की कमी की वजह से बहुत कोई बीमारी होती है, पानी की कमी को बेसिकली क्या कहते हैं? बच्चा कैंसर कॉन्जेनाइटल नहीं होता है. बहुत से लोगों को बचपन पैदा होते ही कैंसर है क्या? हम ब्रॉड कैटेगरी में बात करते हैं. ओके, सो लॉन्चिंग द पोल फॉर द क्वेश्चन नंबर 2.
Mark your answers, all of you. Okay. Fine. So we have 84% of you those who have marked it correctly. That's great. Obviously बच्चा उसको dehydration कहते हैं, ठीक है? Dehydrate. तो आप ORS लेंगे, आप नमक चीनी पानी लेंगे, you'll take ORS something like that ना, so आपकी body दोबारा hydrated feel करे. Next question. Infectious disease are the disease that can spread from infected person to the healthy person. Which of the following can make you ill if you can come contact with the infected person? बच्चा प्रबल कोरोना कितने दिन तक रहता है? हाइड्रोलिसिस इज अ टर्म इन द केमिस्ट्री, वाटर का ब्रेक डाउन होना, ठीक है? मार्क योर आंसर्स. ओआरएस का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस. लॉन्चिंग द पोल फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. आप उसको लेते हैं, घोल रहता है, ठीक है, और आपकी बॉडी को दोबारा से रिहाइड्रेट करता है. सो ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन. आई हैव लॉन्च द पोल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. I have launched the poll. If you'll write in the chat box, if I launch the poll, then you will feel, then you will not able to get the polls. Okay. So we have around 88% of you, those who have marked it correctly. Wow, that's great. So yes, dear, sneezing and coughing, because it is an infectious disease. While high blood pressure, blood cancer, genetic abnormality, ठीक है, वो पर्सन से लाइक पेरेंट से बेबी में आ सकती है, बट एक पर्सन से किसी भी पर्सन में वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. That's great. That's great. Next question, dear. Which of the following has a long-term effect on the health of an individual? एक इंसान के शरीर पे, ठीक है, इनमें से किसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा? कॉमन कोल्ड का, चिकन पॉक्स का, एक्ने का, टोबैको का. एक्ने मीन्स जो पिंपल्स वगैरह निकलते हैं. एक्ने मीन्स जो पिंपल्स वगैरह फेस पे आते हैं, बॉडी पे आते हैं ना. ओके. लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसमें से किसका होगा? So launching the poll for the question number 4. Yep, mark your answers. Okay. Okay. So we have 83% of you those who have marked it correctly. Obviously, bacha, chewing tobacco may lead to cancer, and a cancer is a chronic disorder. So the correct answer is option C. Next question. I will see the leaderboard at the end only. Okay.
If you live in an overcrowded and poorly ventilated house, it is possible that you may suffer from which of the following disease. अगर किसी आप घर में रहते हैं जहाँ पे पुअर वेंटिलेशन है, ठीक है, बहुत एक जगह पे है आप जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? Launching the poll for the question number 5. Now no one will write in the chat box or else you will feel problem while receiving the poll. You will face problem while receiving the poll. ठीक है? Okay. Fine. So yes, it is एयरबॉर्न डिजीज जो कि हवा में फैल सकती है, ठीक है, हवा की वजह से होगी। मतलब सपोज मैंने स्नीज किया तो वो उसी हवा में दोबारा से वेंटिलेशन ही नहीं हो रहा, ठीक है। सो बेसिकली बच्चा एयरबॉर्न डिजीज होगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव आइडिया अबाउट द सेम? गट इन्फेक्शन मीन्स बच्चा, ठीक है, गट इन्फेक्शन मीन्स बच्चा आपके एलिमेंट्री किनाल में किसी तरीके का इन्फेक्शन होना। If you're not receiving the bubble, ठीक है, प्लीज मेक श्योर यू आर इन द नेटवर्क जोन। और आप पोल लॉन्च करने के बाद चैट बॉक्स में मत लिखिए goiter is caused due to the deficiency of launching the poll for the second last question. Why cholera? बच्चा cholera water के थ्रू होता है, cholera is a waterborne disease. Launching the poll for the question number 6. Everybody mark your answers. Okay. पोल नहीं आ रहा है तो बच्चा आप ये श्योर करिए कि आप नेटवर्क एरिया में हैं। आप नेटवर्क एरिया में होंगे तभी पोल आएगा। Okay. So we have 83% of you those who have marked it correctly. Yes dear, iodine की deficiency से goiter होता है. This you have studied in your 8th standard too. So last question of the day. Those who are not receiving the poll, make sure that you are in the network area. आप network area में हैं, ठीक है? We are on the last question for the day. A chronic case of a disease denotes. शालू बच्चा ऐप में ऐसे होता है, मेंटी नहीं होता है। chronic case of a disease denote. Mild attack मतलब उसका हल्का सा कुछ असर होना, थोड़ा सा अटैक आना। Last question. I am launching the poll for the very last question, and yes, the poll must be in front of you. Everybody mark your answers. Okay. So we have how many of you? We have 87% of you, those who have marked it correctly. Let us have a look over the leaderboard. So there are many kids, those who have marked all the questions correct. Okay, that's great. All of you have done very well. So chronic मतलब बच्चा अभी हमने पढ़ा that occurs for a long period of time. Okay.
So I hope that all of you enjoyed the session. ठीक है? So see you all in the next class, and make sure that all of you join the group. Join the Telegram group. Telegram group आप join करिए, ठीक है? You will be notified for everything. You will have a quiz in the Telegram group too. तो फटाफट से आप join करिए. Today we have talked about what is health, ठीक है? What is being healthy versus disease free. We have talked about the types of disease, and we have talked about the causes of disease. So see you all in the next class, and make sure that you attempt the quiz before the next class and you read the study notes. See you all in the next class. Till then, all of you take care. God bless. Good night. Next class will be tomorrow at 5 p.m. only. Why not? कल होगा 5 बजे. ठीक है? And make sure that all of you join the Telegram group. See you all over there. Bye bye.